मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? ठीक, तो नर प्रजनन प्रणाली के बारे में आज जानकारी दी जाएगी आपको कि ये वुमेन में जो होता है नर प्रजनन प्रणाली या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, पुरुषों में शुक्राणु यानी स्पर्म जो होता है बनाने, स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें सबसे पहले आपका जो होता है वो टेस्ट होता है, जिससे हम वृषण के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का प्राथमिक नर प्रजनन अंग होता है, जहां पर स्पर्म यानी शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन जो प्राथमिक नर सेक्स हार्मोन का उत्पादन करता है। और दूसरा पॉइंट आपका होता है एपिडिडिमियस। एपिडिडिमिस यह प्रत्येक वृषण के पीछे स्थित एक कुंडलित ट्यूब होता है। यहीं पर शुक्राणु परिपक्व होते हैं और संग्रहित किए जाते हैं। शुक्र वाहिका यह ट्यूब परिपक्व शुक्राणु को एपिडिडिमियस से मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा तक ले जाती हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट आपका है शुक्राशय, जिसे हम सेमिनल वेसिकल्स, ये ग्रंथियां एक तरल पदार्थ का उत्पादन करती हैं जो शुक्राणु को पोषण और सुरक्षा प्रदान करती हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट आपका है पोस्टेट। पोस्टेट ग्रंथि। पोस्टेट ग्रंथि क्या होती है? यह ग्रंथि एक तरल पदार्थ का उत्पादन करती है जो वीर्य यानी सेमेन बनाने में मदद करती है। मूत्र मार्ग यानी जिसे हम यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं, यह ट्यूब मूत्र और वीर्य दोनों को शरीर से बाहर निकालती है। ठीक, लास्ट पॉइंट आपका है शिश्न, जिसे हम पेनिस कहते हैं। यह यौन संबंध के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बाहरी अंग होता है। टेस्टोस्टेरोन वह हार्मोन होता है जो पुरुषों में द्वितीयक यौन विशेषताओं जैसे कि मांसपेशियों में वृद्धि और आवाज में भारीपन के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। ठीक, तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे। This video covers what happens during puberty in more detail. The testes produce sperm, the male gametes. The testes are kept outside the body in the scrotum. This keeps them cooler and is better to form sperm production. The sperm ducts carry sperm from the testes to the urethra, which is a tube running down the inside of the penis. Here the sperm is mixed with secretion from glands to produce a liquid called semen. Semen helps carry the sperm into the female reproductive system. Here's the female reproductive system. The female gametes, eggs or ova, are released from the ovaries. One is released every month by a process called ovulation. When a baby girl is born, she already has all of the eggs she will ever release inside her ovaries. During puberty, the monthly cycle of an egg maturing and being released starts. This is part of the menstrual cycle. More about this can be found in this video. After ovulation, the egg travels along a tube called the fallopian tube, or oviduct, away from the ovary and towards the uterus, which is also known as the womb. During sexual intercourse, also called copulation, semen is ejaculated from the penis into the woman's vagina and swim up through the cervix and uterus. If a sperm manages to reach the egg in the fallopian tube, then fertilization will occur. The egg only survives for 24 hours after ovulation, but sperm can survive for up to 5 days. This means that there is about 6 days during a cycle in which a sperm and egg can meet and the female can become pregnant. The fertilized egg, called a zygote, will start to divide. On reaching the uterus, this cluster of cells will settle into the lining. If the egg is not fertilized, it will leave the uterus along the lining and menstruation, also known as a period, will occur. Once inside the uterus, in a pregnant woman, the ball of cells will continue to divide and differentiate to form different types of cells. Some will form structures in the embryo and others the placenta.
Placenta is an organ and is where the exchange of substance between the mother and embryo occurs. Nutrients and oxygen will pass from the mother's blood into the embryo's blood in the placenta. Blood vessels in the umbilical cord transport these to the embryo. Waste products like carbon dioxide will pass from the embryo to the mother, where they are excreted. At the end of week 8 after fertilization, the embryo is called a fetus. Now it has all the organs including a heart and brain, but it is only still the size of a grape. The fetus continues to develop for the entire pregnancy, also called gestation, so it can survive independently of its mother. This is normally between 38 and 42 weeks. In this video, you have learnt about sexual reproduction in humans and how the male and female sexual reproductive organs are used to form and grow a fetus, ready to be born. If you liked the video, give it a thumbs up and don't forget. फीमेल रिप्रोडक्शन। फीमेल रिप्रोडक्शन आपका क्या होता है कि मेल वाला जैसे बताया गया, आपको फीमेल वाला भी सेम ऐसे ही रहता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट क्या हो जाता है कि फीमेल का जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक, उसमें आपका ओवरिस होता है। क्या होता है? ओवरिस, ठीक, जिसे हम अंडाशय के नाम से जानते हैं। ये ओवरिस जो होता है एकदम बादाम के आकार का दिखता है, ठीक, किसके आकार का दिखता है? बादाम के आकार का, ठीक। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है ओवरिस जो होता है, दीज आर टू एलिमेंट शेप ऑर्गन्स लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी, यानी दो बादाम के आकार के अंग होते हैं जो श्रोणि गुहा में स्थित होते हैं। इनका प्राथमिक कार्य अंडे का उत्पादन करना और महिला सेक्स हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करना होता है, ठीक। यानी फंक्शन आर द प्रोड्यूस एग्स एंड टू सेक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोटोगेस्टेशन। दूसरा आपका पार्ट जो होता है फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, उसे हम डिंब वाहिनी के नाम से भी जानते हैं। दो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, इसमें दो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, ठीक। प्रत्येक अंडाशय से गर्भाशय तक फैली हुई है, वे अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाते हैं। निषेचन आमतौर पर क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। और गर्भाशय यानी आपका यूटेरियस जो होता है गर्भ, यह एक नाशपाती के आकार का, ठीक, मांसल अंग होता है, ठीक। नाशपाती के आकार का इस तरह से एक मांसल अंग होता है, जहां पर गर्भावस्था के दौरान एक निषेचित अंडा प्रत्यारोपित और विकसित होता है। इस गर्भाशय के आंतरिक जो परत होते हैं, जिसे एंडोमेट्रियम, यानी ये जो होता है एंडोमेट्रियम कहा जाता है, और मासिक धर्म चक्र के दौरान यह क्या होती है? मोटी हो जाती है और झड़ जाती है। अगला पॉइंट आपका है गर्भाशय ग्रीवा, जिसे हम क्रैबिक्स के नाम से जानते हैं। यह गर्भाशय का निचला संकीर्ण भाग होता है, ठीक। ये निचला संकीर्ण भाग होता है जो योनि से जुड़ा रहता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्रैबिंग, दिस इज द लोअर नैरो पोर्शन ऑफ द यूटेरियस दैट कनेक्ट टू द वैगिना। वैगिना क्या होता है? जिसे हम योनि कहते हैं। यह एक मांसपेशी नलिका होती है जो गर्भाशय ग्रीवा से होकर शरीर के बाहर तक फैली हुई है। यह जन्म नहर और मासिक धर्म के प्रवाह के मार्ग के रूप में कार्य करता है। वैगिना, दिस इज अ मस्क्यूलर कैनल दैट एक्सटेंड फ्रॉम द cervix to the outside of the body. It serves as the birth canal and the pathway for menstrual flow. उसके बाद आपका अगला पॉइंट है वुल्वा। यह बाहरी महिला जननांग को संदर्भित करता है, जिसमें लेबिया, क्लिटोरिस और योनि का उद्घाटन शामिल रहता है। दिस रिफर टू द एक्सटर्नल फीमेल जेनिनेशन इंक्लूडिंग द लेबिया, क्लिटोरियस एंड वैगिनल ओपनिंग, ठीक। महिला प्रजनन प्रणाली कई प्रमुख कार्यों के लिए भी जिम्मेदार होता है, जैसे अंडे यानी ओवा का उत्पादन करना, निषेचन के लिए एक जगह प्रदान करना, गर्भाशय के दौरान भ्रूण के विकास का समर्थन करना, प्रसव को सुविधाजनक बनाना और महिला सेक्स हार्मोन्स का उत्पादन करना होता है, ठीक। तो ये चीजें हमारी जो होती हैं, ठीक। अब इसमें क्या है आपका, अगर आपको जैसे कंफ्यूजन है
कि क्या होता है ये फीमेल। तो यहाँ पर हम आपको फीमेल का स्ट्रक्चर दिखा दे रहे हैं, ठीक। फीमेल रिप्रोडक्शन, ठीक। चलिए इसका फिगर देख लीजिए कैसे बनता है, और फिगर के माध्यम से ही आपको बता दे रहे हैं। ये आपका देखिए, ठीक, ये हमारा, ठीक, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, यानी फीमेल वाले में ये रिप्रोडक्टिव किस तरह से होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके सारे पार्ट आपको दिखाया गया है। यही जो कहा गया आपका नाशपाती के आकार का बना होता है, ये आपका स्थैमस होता है, यूट्रेनियन ट्यूब होता है, यही गर्भाशय होता है, ये आपका कैर्विक्स होता है, ठीक। इतनी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ये देखिए, ठीक है। मैं यहाँ साइड में कर ले रहा हूँ उसको। चलिए ऊपर है, ये हो गया। ये पार्ट जो है आपका यूट्रेन ट्यूब कहलाता है। यूट्रेन ट्यूब क्या होता है आपको बताया गया, जैसे फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रेन ट्यूब हो गया, और ये आपका बॉडी ऑफ यूटेरस होता है, बॉडी ऑफ यूटेरस हो गया। यूटेरस का मतलब यही आपका गर्भाशय होता है, ठीक। गर्भाशय यहाँ एक नाशपाती के आकार का दिखाया गया है, एक आकार का मांसल अंग होता है जो गर्भाशय के दौरान क्या होता है, निषेचित होता है और अंडा प्रत्यारोपित और विकसित होता रहता है। यहाँ पर गर्भाशय का जो आंतरिक परत होता है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक, एंडोमेटेरियल कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो ये सर्विक्स दिया है आपका। सर्विक्स में क्या होता है, जिसे हम गर्भाशय ग्रीवा के नाम से भी जानते हैं। यह गर्भाशय का निचला सिरा होता है, सबसे निचला वाला पार्ट, ये छोटा पतला होता है, ठीक, जो यौन से जुड़ा रहता है। उसके बाद और नीचे आते हैं तो ये वोगिना कहलाता है, जिसे हम योनि के नाम से जानते हैं, ये वोगिना होता है। यह एक मांसपेशियों का एक नलिका होता है जो गर्भाशय, ठीक, गर्भाशय ग्रीवा से शरीर के बाहर तक फैली होती है। यह जन्म, नहर और मासिक धर्म यानी जो पीरियड होता है वो धर्म के प्रवाहन मार्ग के रूप से ये कार्य करता रहता है, ठीक। उसके बाद ये बॉडी यूटेरियस होता है, जिसे गर्भाशय का ये परत होता है। ओवेरियन लिगमेंट होता है, ओवेरियन लिगमेंट आपका जहाँ पर अंडे का उत्पादन किया जाता है। एक्सटर्नल ऑस ऑफ ए कैर्विक्स होता है, ठीक। तो इस तरह से कैर्विक्स वही गर्भाशय का ग्रीवा जो होता है, तो ये हमारा किसका है, ठीक। एकदम ध्यान से देख लीजिए इसको, हर चीजें इसमें आपको क्लियर नजर आएंगी। ये हमारा फीमेल वाला हो गया, ठीक। तो फीमेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है कि जब क्वेश्चन हमारा इसमें है, व्हेन एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय ए स्पर्म, यानी जब अंडाणु जो होता है शुक्राणु द्वारा निषेचित नहीं होता है तो यह शिशु के रूप में, यानी शिशु के रूप में विकसित नहीं होता है। इसके बजाय यह गर्भाशय से होकर गुजरता है और मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की परत के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। अब क्या होता है कि अंडाणु का निकलना, अंडाणु कैसे निकलता है, महीने में लगभग एक बार जो होता है अंडाशय ओव्यूलेशन नामक प्रक्रिया में एक अंडाणु छोटा है, यानी अबाउट वंस ए मंथ an ovary release an egg in a process called ovulation, ठीक। गर्भाशय की यात्रा क्या होती है, ट्रेवल टू द यूटेरियस, अंडाणु फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय की ओर जाता है। निषेचन विंडो, फर्टिलाइजेशन विंडो, यदि फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु मौजूद है और एक अंडाणु को निषेचित करता है तो गर्भाशय हो सकती है। यह आमतौर पर ओव्यूलेशन के लगभग 24 घंटों के भीतर होता है। निषेचन, नो फर्टिलाइजेशन, यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो यह गर्भाशय की ओर जाता रहता है। मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन, चूंकि गर्भावस्था नहीं हुई है इसलिए शरीर गर्भाशय की परत को बहा देता है। जब संभावित गर्भावस्था की तैयारी के लिए मोटी हो गई होती है तो यह परत बिना निषेचित अंडे और कुछ रक्त के साथ योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे ही हम पीरियड या मासिक धर्म के नाम से भी जानते हैं।